Assalamu alaikum. This is Rabia Kamran on behalf of Chalo Padho with Rabia, and this is Basic Statistics Paper 2 of Aga Khan Board. Total marks of this portion is 9. इसमें से आपके पास 6 जो है वो MCQs होते हैं of marks 6, and there is only one CRQ जो 3 marks का होता है. Okay, so here we are going to solve CRQ of 3 marks 2024 paper. Question number 1. Here you can see that a company has been tracking the daily sales figure for their products over the last month. The figures are as follows: 492 215 towards 291, the last value. Consider the given figures to complete the following table. Okay, so class intervals are from 100 to 299, then 300 to 499, 500 to 699, 700 to 899, 900 to 1099. Okay, so first of all I will write here the class boundaries I will make. That would be, this is 100, so that would be, if I will subtract 0.5 from 100, that would be 99.5, and that would be 299.5. okay, these are the class boundaries of first class interval, and this is 299. Whatever written over there, here you will repeat it as the lower class boundary of second group or class interval, that is 499.5. that would be 400, we will repeat it, 499.5, and that would be 699.5, and that is 699.5 to 899.5, and that is 899.5 to 1099.5. These are the class boundaries. Now let's get started to put the frequencies over there in class intervals. So I will write class intervals again over here. These are 100 to 299, okay, and 300 to 499, and 500 to 699. okay, we will write them in provided space. This is 899 and 900 to 1099. So now I will put the tally marks over here, okay, to find out the frequency. And tally marks are, the first one is 492. 492 will be over here, okay, so one tally mark. 492, 215, where it would be 215, that would be here, 215. Now 384 would be over here, and 793 would be over here, and 523 would be over here, and 707, that would be here, 707. 821 would be over here, and this is 422, and this is 930 would be here, 156, that would be here, and 361 would be here, and 499 would be here, okay, and 682 would be here, and 448 would be here, and 291. okay, so these are three marks, so 3 would be there, and these are 6 marks would be over there, and these are 2 marks, and these are 3 marks, and these are 1 mark. okay, so let's find out the total that is 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15.
So these are 15. Let's count them. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. It means that we have got correct the total correct frequency. तो 15 आपके पास यहाँ पर भी 15 आया हुआ है. It means it is correct. Cumulative frequency, how will you find out? This is the running total. Okay, तो जो 3 आपका यहाँ लिखा हुआ है, I will write 3 over there. And what about the second one? तो हम यहाँ पर कैसे लिखते हैं? 3 plus 6, that is equal to 9. Okay, and the second one, 9 plus 2, this is the third one, not second one, this is 11. And 11 plus 3, this is 14. And 14 plus 1, that is 15. Okay, and this is 15. So you can see that this is 15 and the total frequency is 15, running total is 15. It means that cumulative frequency is correct. So we have done with this question successfully. Now this is paper 2023. This is the model paper actually. Question number 1 of 3 marks. The given data represent the distance covered by 30 cyclists. There are 30 cyclists in a race and they are going to cover the distances. Distance is 0 to 4. This is the first interval, and the frequency 7 cyclists are there who are covering this distance. 3 cyclists this distance, 8 cyclists this distance, 4 cyclists this distance from 14 to 22, and 8 cyclists from 22 to 32. This is the frequency. These are the total cyclists. If we will add all the frequencies, we can find out the number of total cyclists would be 30. Okay, now class widths are, this is 0 to 4, 4, and 4 to 10, that is 4 out of 10. This is 6, and here class width 4, class width 8, and this is the class width 10. Okay, and now we will find out the frequency density. Why is it so? Because all the class widths are different. यहाँ आप देख रहे हैं 4 है, 6 है, 4 है, 8 है, 10 है, ये आपस में इक्वल नहीं है. सो दैट जो फ्रीक्वेंसी का जो आपका बार होगा, जो उसकी हाइट होगी, वो असल आपकी फ्रीक्वेंसी को शो नहीं कर रही होगी, इसलिए कि डिस्टेंसेस यानी जो एक्स एक्सिस के ऊपर जो आपके इंटरवल्स हैं वो डिफरेंट हैं. तो आप यहाँ क्या करेंगे? आप फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालेंगे. हाउ विल यू फाइंड आउट योर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी? फ्रीक्वेंसी को अगर आप क्लास विड्थ से डिवाइड कर दें तो यू कैन फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी डेंसिटी. तो यहाँ in this question you have been given all the frequency densities. Okay, so how will you make your histogram over here? Let me start. इसको बहुत एहतियात से आपने रूलर यूज़ करना है. यहाँ आपकी ये लाइन आ जाएगी and that would be the x axis and y axis. ये दोनों आपके पास vertical horizontal lines आ गई हैं. Here this is origin, or I can put 0 over there also. ऊपर आपको यहाँ 0 से start नज़र आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ class width जो है वो आपकी जो है वो सबसे जो स्मॉल है वो 4 है और सबसे जो हाईएस्ट है वो 10 है. ओके, तो हम जो हैं वो इसी हिसाब से नीचे यहाँ जो डिस्टेंसेस रखेंगे वो इसी हिसाब से रखेंगे. पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि हमारा 0 से स्टार्ट हुआ है और 32 तक गया है. ओके, डिस्टेंस जो है वो 0 से स्टार्ट हुआ है और 32 तक गया है. तो हम 32 लेने के बजाय इसको हम 35 कर लेते हैं. ठीक है, एक ऐसी वैल्यू जिसमें 5 का डिफरेंस आ जाए तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे. ओके, तो दिस इज़ 5, दिस इज़ 10. इक्वली हमें इसको मार्क करना है. This is 15 and then 20, then 25, then 30 and then 35. Okay, so let me write over here. This is 5. X axis के ऊपर हमने distances रखने हैं. इसके बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20, then 25, then 30 and then 35. Okay, and now
On y-axis what will we take? Frequency density. तो frequency density में देखें तो सबसे smaller value आपके पास 0.5 है and the biggest value is 2. ओके, तो 0.5 and 2. तो हम सबसे पहले जो highest value है उसको ले लेते हैं. This is 2. I will write here 2 and then in between this 2 and 0 the halfway this is 1. Okay, and that would be 1.5. okay, and that would be 0.5. ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई. अब हम अपना ग्राफ जो है वो डिस्टेंस और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के बिटवीन हम इसको प्लॉट करेंगे. ठीक है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी अगेंस्ट डिस्टेंस. तो डिस्टेंस हमारे पास जो है वो एक्स एक्सिस पर है 0 to 4. 4 अगर हम अंदाज़ा करें तो दैट वुड बी ओवर हियर. ये आपके पास 4 आ रहा है. 0 to 4 ये आपका जो है वो यहाँ से जो है वो हिस्टोग्राम बनना शुरू होगा. और हमने जाना कहाँ तक है? 1.75. वेयर इट वुड बी 1.75 इन बिटवीन 1.5 एंड 2. ओके, तो दैट वुड बी हियर. तो ये इसकी हो गई है हाइट ऑफ योर हिस्टोग्राम बार. ये यहाँ आ गया आपका लाइक दिस. ओके, सो दैट इज़ हियर लाइक दिस. एंड नाउ आपने तो रूलर यूज़ करना होगा और ये लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए. नाउ 4 to 10. नाउ 4 to 10 दैट वुड बी हियर. यहाँ तक आपका आएगा. अच्छा, 4 to 10 पे आपकी 0.5 है तो इसकी हाइट 0.5. दैट वुड बी लाइक दिस. ओके, ये आ गया आपके पास. एंड देन 10 to 14. 10 to 14 दैट वुड बी हियर समवेयर and that is 2. so I will take it, I will draw it till 2. ठीक है, और ये हमारे पास 0 to 10 to 14 है. तो यहाँ से हमारी लाइन ड्रॉ होनी शुरू होगी. ओके, तो ये हम यहाँ से ऐसे बनाते हैं और इट वुड बी लाइक दिस. ओके, ये हमारे पास आ गई है. उसके बाद हम 14 to 22 दैट वुड बी somewhere here 22 और ये हमारी है 0.5. तो अगेन दैट वुड बी 0.5. दो जो हमारे पास बार्स हैं वो 0.5 तक गई हैं एंड देन 0.8. 32 तक जाना है. दैट वुड बी हियर समवेयर एंड 0.8 वेयर इट वुड बी 0.8 0.5 6 7 8. ओके, तो ये हमारा यहाँ कहीं है 8. इसको आपने बहुत अच्छे से ड्रॉ करना है. इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए. इसकी हाइट अच्छे से देख लीजिएगा एंड यू नीड टू यूज़ योर रूलर. ये हमारे पास ये आ गया. तो दैट इज़ अ हिस्टोग्राम इन बिटवीन योर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी. देयर दैट वुड बी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी. ओके, डेंसिटी and there would be your distance in kilometer. so that would be distance in kilometer. तो ये आपके किलोमीटर्स हैं. ओके, अच्छा, अब यहाँ आप लिख क्या देंगे कि 0 to 5 units 5 units show 5 किलोमीटर्स. ये कहाँ की बात हो रही है? एक्स एक्सिस की बात हो रही है. ओके, ऑन एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस. ऑन वाई एक्सिस 5 units shows 0.5 frequency density. okay, now this is 2023 paper. Question number 1, total marks 3. At a camping point 126 tourists visited in a day. टोटल हमारे पास 126 टूरिस्ट्स हैं. देयर एज ग्रुप्स वर रिकॉर्डेड इन द गिवन टेबल. अब आप यहाँ अगर एज ग्रुप देखें तो 16 to 20 हाउ मेनी टूरिस्ट्स आर देयर? 10. 21 to 25 25 26 to 30 30 एंड सो ऑन सो फोर्थ. अगर हम इन सब को काउंट करेंगे तो दैट वुड बी 126. okay, number of tourists means this is the frequency. okay, these are the groups and these are the frequencies. now we need to find out, label the given columns and complete the given table. ठीक है,
पहले इसको लेबल करना है, फिर इसको कंप्लीट करना है। ऑल्सो फाइंड द अरिथमेटिक मीन फॉर द गिवन डाटा, और उसके बाद हमें अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। तो जो हम इसको लेबल करेंगे तो यहाँ हमें x की वैल्यू देनी पड़ेगी विच आर द मिड पॉइंट्स और क्लास मार्क्स। ओके, तो मिड पॉइंट 16 and 20, what it would be in between them, 16, 17, 18, 19 and then 20. तो which number will be in the middle? 16 और 20 को हम इसका एवरेज निकाल लेंगे, 16 plus 20 upon 2, and this is 36 upon 2, and what it would be, 2 ones are 2, 2 8s are 16, so that would be 18. Likewise here 21 and 25, 46 divided by 2, 2 2s are 4 and 2 3s are 6. Likewise 56 and 56, 2 2s are 4 and 56 2 8s are 16. Likewise 31 and 35, 66, 3 33, and here 36, 37, 38. ओके, और यहाँ आ जाएगा 41 के बाद 42, 43, and here this is 46 के बाद 47, 48. तो these are the class marks और mid points. ओके, तो ये हमने निकाल लिया है, एवरेज होता है ये इन दो वैल्यूज़ का, ठीक है। तो ये दोनों ये हमने निकाल लिया है, एंड आफ्टर दैट आई विल फाइंड आउट एफ एक्स। ओके, तो एफ एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो एफ की वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। यहाँ हम लिखेंगे 10 मल्टीप्लाइड बाय 18 एंड दैट वुड बी 180. ओके, एंड दैट इज 25 मल्टीप्लाइड बाय 23. ओके, एंड दिस इज 30 मल्टीप्लाइड बाय 28, and this is 15 multiplied by 33, and this is 20 multiplied by 38. Okay, and this is 14 multiplied by 43, and that is 12 multiplied by 48, and what it would be. Now we will find out the values after multiplying them. So now we can see that this is x. जब हम तमाम x की वैल्यूज़ को प्लस कर लेंगे, ठीक है, यानी ये हमारे क्लास मार्क्स हैं या मिड पॉइंट्स हैं, जब हमने इन सबको ऐड कर लिया है तो ये आ गया सिग्मा x इज इक्वल टू 231, और ये सिग्मा एफ एक्स जो है वो हमारे पास आ गया 4028. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द अरिथमेटिक मीन. अब अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए एवरीबॉडी नोज वी विल मेक दिस सिंबल. ये अरिथमेटिक मीन का सिंबल है, और हम ऊपर लिखेंगे सिग्मा ऑफ एफ एक्स एंड डिवाइड इट बाय सिग्मा ऑफ एक्स. तो आपका सिग्मा ऑफ एफ एक्स जो आया है दिस इज़ 4028 एंड दिस इज़ 231. जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे, व्हेन वी डिवाइड both of them, that would be 31.96, and this is your mean value. Okay, so this is your answer. Now this is 2018 paper, question number 8, total 4 marks. यहाँ ये क्वेश्चन जो था 2018 में ये 4 मार्क्स का था. इन अ सर्वे एम्प्लॉयज़ ऑफ अ कंपनी वर आस्क्ड देयर प्रेफर्ड लंच मेन्यू, यानी उनसे पूछा गया कि वो अपने प्रेफर्ड लंच मेन्यू बताएं फ्रॉम चॉइसेस ए. 3 कैटेगरीज थी, ए बी एंड सी. ओके, तो द रिजल्ट्स आर रिप्रेजेंटेड इन द गिवन पाई चार्ट. पाई चार्ट बना के उसका रिजल्ट जो है वो दिया गया है 3 सेक्शंस का. तो यहाँ आपके पास ए आ गया है, सी आ गया है, ये बी आ गया. ओके, ए एंड बी आर गिवन, वी नीड टू फाइंड आउट सी. तो हमें पता होना चाहिए कि टोटल जो परसेंटेज जो होती है वो 100 होती है. ओके, तो हमें 100 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा. ओके, टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ सी. तो जब मैं परसेंटेज ऑफ सी निकालने पे आऊँ तो मुझे 100 में से ए को एंड देन बी को माइनस करना होगा. सो 100 माइनस ए विच इज़ 16 माइनस बी विच इज़ 28. ओके, तो ये हमारे पास हो गया 6 2 12 13 14 14 4 एंड 44. तो 100 माइनस 44. ओके, तो 100 माइनस 40 56. This
this is 56 percentage. So I will write here 56%. Now we are going to find out number of employee. तो हमारे पास जो है वो तीन ये वैल्यूज़ हैं, हमारे पास परसेंटेजेस हैं ए बी सी की, और नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो हैं वो ए मेन्यू वाले हैं 64. तो अगर मैं इसको यहाँ कह दूँ कि दिस इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, यहाँ एक्स वेरिएबल अगर मैं रख दूँ और प्रोपोर्शन बना लूँ ए और बी की वैल्यूज़ में, तो ये कुछ इस तरह होगा. लेट मी मेक अ लाइन ओवर देयर. ठीक है, आप ये रफ पेज के ऊपर काम कर रहे होंगे, यहाँ काम नहीं होगा. ठीक है, तो यहाँ मैं लिखती हूँ दैट वुड बी 16 रेशियो 28 इक्वल्स 64 रेशियो x. ओके, और मीन वैल्यूज, प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज, दैट वुड बी 16x इज इक्वल टू 28 मल्टीप्लाइड बाय 64 डिवाइडेड, नॉट डिवाइडेड बाय एट द मोमेंट. अगर मैं यहाँ से 16 को कैंसिल करके यहाँ लेकर आ जाऊँ तो 16 1s are 16, 16 4s are, and that would be 32 112. The value of x would be 112. So I will write here 112 instead of x. तो ये मेरे पास आ गए. कितने एम्प्लॉयज़ होंगे बी मेन्यू में? 112. ओके, एंड नाउ वी आर गोइंग टू मेक द रिलेशन ऑफ ए एंड सी. इसी तरह हम यहाँ रिलेशन बनाएंगे 16 and 56, 16 and 56. ओके, एंड यहाँ अब हम x रख देंगे, सो दैट वुड बी 64 and x. ओके, एंड अगेन 16x is equal to 56 multiplied by 64, और जो 16 है उसको हम डिनोमिनेटर में ले गए, 4s are, that would be 24 224. x की वैल्यू आ गई है, so I will remove it from here and I will write 224. okay, now we are going to find out angle of sector or section. तो ये हम 360 के ऊपर निकालते हैं. ठीक है, टोटल एंगल जो है वो 360 होता है. सो आई विल राइट हियर 360, 360 एंड 360 एंड मल्टीप्लाइड बाय, हम चाहें तो इसको टोटल करके और 64 अपॉन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कर सकते हैं, और 112 अपॉन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय ये भी लिया जा सकता है इधर, और 2024 अपॉन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ भी लिया जा सकता है. लेकिन ज़्यादा इजी ये लग रहा है कि हम परसेंटेजेस यूज़ कर लें. तो 16% का मतलब होता है 16 आउट ऑफ 100 मल्टीप्लाइड बाय 36, एंड यहाँ आ जाएगा आपका 28 आउट ऑफ 100 एंड मल्टीप्लाइड बाय 36, और यहाँ आपके पास आ जाएगा 56 आउट ऑफ 100 multiplied by 36. तो 0 0 will be cancelled like this, 0 0 will be cancelled and that would be, यहाँ हमारे पास 5 आ जाएगा, 5 2 5s are 10 and 2 8s are 16. यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2 5s are 10, 2 14s are, ओके, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2 5s are and 2 2s are 4, 2 8s are. okay, now we will multiply 8 by 36 and 14 by 36 and 28 by 36. okay, so let me do it. 8 multiplied by 36, what it would be? 8 multiplied by 36, this is 48, and 8 3s are 24, 25, 26, 27, 28, that would be 288. now we will divide 288 by 5, 288 by 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 5s are 25 and that is 3 8 will go down and that is 5 7s are 35 and that would be 3, put a point over there and 0, 5 6 are 30. okay, तो ये हमारे पास आ गया 57.6. this is 57.6 degree, and now this is 14 multiplied by 36, 36 multiplied by 14, what it would be? 4 6 are 24 and 4 3s are 12,
13 14 and 1 6 are 6, 1 3 are 3, that is 4 0 and 3 4 5, 504 divided by 5. ओके ये आ गया आपका 5 1s are 5, that is 0 will go up and 4 will go down, and that is 5 zeros are 0, that is 4 and point, that would be 0 over there, and 5 8s are 40. तो ये आपके पास आ गया है 100.8 डिग्री. ओके 100.8 डिग्री. एंड अभी आप ये भी कर सकते हैं कि ये दोनों को ऐड करें और 360 में से माइनस कर दें, तो यू विल गेट द थर्ड वैल्यू. और या फिर आप इसको मल्टीप्लाई करें 28 को 36 से और फिर 5 से डिवाइड करें. तो ज़्यादा आसान ये है कि हम 360 में से ये दोनों वैल्यूज़ को माइनस कर देते हैं. तो व्हाट इट वुड बी टू फाइंड आउट एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल निकालना है हमें, किसका, सी का निकालना है एंगल. तो उसके लिए हम 360 में से हम 57.6 माइनस 100.8 कर देते हैं. तो जब हम ये करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, दैट वुड बी 201.6 डिग्री. ओके तो आई विल राइट हियर 201.6 डिग्री. अच्छा, इसको चेक करने का तरीका क्या है कि हमारा आंसर ठीक है, ये तमाम जो तीनों जो पॉइंट्स हैं वो ठीक हैं कि नहीं. वी विल ऐड ऑल दीज 3 values. That would be if your total is 360 degree, then your answer is correct. Your angle of sectors would be correct. तो ये आपके पास 360 डिग्री ही आ रहा है, इसका मतलब है आपके आंसर्स करेक्ट हैं. That is 2018 paper. Okay.